बेघर होगा उनको घर दे दो, या घर नहीं दे सकते हो तो इतनी डिपॉजिट दे दो उनको कि वो अपने घर रह सके। हफ्ता तो भर लेंगे पर डिपॉजिट कहाँ से लाएंगे? लेने जाओ, सालम के नाम से कोई मकान भी नहीं देता है। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। જે કાશ્મીરમાં પહેલગામમાં જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો આતંકીઓ દ્વારા અને 26 આપણા ભારતીય નિર્દોષોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી હતી અને જે બાંગ્લાદેશીઓ જે વગર ડોક્યુમેન્ટે જે ભારતમાં રહેતા હતા ત્યાં તમામ જગ્યાઓ પર છાપા મારીને તેમને અહીંથી ખદેડવામાં આવ્યા હતા। સાથે સાથે અમદાવાદની અંદર જે ચંડોળા વિસ્તાર હતો જ્યાં બાંગ્લાદેશી જે ઘૂસપેઠિયા છે તે અહીંયા વસાવટ કરી રહ્યા છે, ત્યારબાદ તેની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી અને જે બાંગ્લાદેશીઓના જેટલા મકાનો હતા તેમના મકાનો પણ ડિમોલેશન કરી નાખવામાં આવ્યા હતા। સાથે સાથે સરકારે ક્યાંય ને ક્યાંય આપણા ભારતના નાગરિકો પર જે વસાવટ કરતા હતા તેમના પણ મકાનો ડિમોલેશન કરવાના શરૂ કરી દીધા હતા અને તેમના પણ મકાનો ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ સ્થાનિક કોર્પોરેટર શહેજાદ ખાન પઠાણ અને અહીંના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ પરમાર દ્વારા મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને શહેર પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ જે તમે મકાનો બાંગ્લાદેશીના ડિમોલેશન કર્યા હતા તેની સાથે સાથે ક્યાંય ને ક્યાંય ભારતીય નાગરિકોના પણ મકાનો ડિમોલેશન થઈ રહ્યા છે। ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા જે ચકાસણી કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ તે ડિમોલેશનનું કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું હતું અને રોકી દેવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ અત્યારે જે કાલના દિવસે 20 મેથી જે અત્યારે હાલમાં ફરીથી ચંડોળા તળાવ પર ડિમોલેશનનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટર શહેજાદ ખાન પઠાણ અહીંના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ પરમાર દ્વારા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી હતી અને સરકારની પાસે રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી કે આમને જે આવાસ યોજનાના મકાનો છે જે ભારતના અહીંના નાગરિકો છે તેમને એ મકાનો ફાળવવામાં આવે, ત્યારબાદ સરકારે તેમને ફોર્મ ભરવાનું આવેદન કરવામાં આવ્યું હતું। તો શહેજાદ ખાન પઠાણ અને અહીંના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર દ્વારા એક અહીંયા જે દાણી લીમડાનું જે કોર્પોરેશન જે સિવિક સેન્ટર જે આવી રહ્યું છે તે કેમ્પ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા લોકોના જે અહીંયા ચંડોળા તળાવમાં વર્ષોથી જે વસી રહ્યા હતા તેમના ફોર્મ ભરાવવામાં આવી રહ્યા છે અને જે 2010 પહેલાંના જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ ડોક્યુમેન્ટ લઈને અહીંયા લોકોના અત્યારે હાલમાં ફોર્મ ભરાવવામાં આવી રહ્યા છે અને આ ડોક્યુમેન્ટની અંદર હાલ 2 પુરાવા તો એવા જોઈએ કે જે 2010 પહેલાંના હોય, જેમ કે ચૂંટણી કાર્ડ છે, આધાર કાર્ડ છે અને લાઇટ બિલ હોય એ 2010 પહેલાંનું હોય, તેમને અહીંયા ફોર્મ ભરીને તેમને અહીંયા આવાસ યોજનાના મકાનો ફાળવવામાં આવશે। શકો છો કે લોકોને અહીંયા ફોર્મ પણ ભરાવવામાં આવી રહ્યા છે। न्यूज़ फॉर गुजरात, शरीफ गाची, अहमदाबाद। मेरा नाम शेख तलहा अब्दुल रहीम है। कहाँ मकान है आपका? मेरा मकान चंडोला तालाब चित्तेश्वर महादेव के सामने है। 1994 से रह रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास लीगली डॉक्यूमेंट भी है। सरकार ऐसा बता रही है कि गैर कायदेसर है, तो वो डिमोलेशन होगा तो अभी फॉर्म भरने आयोग क्या हो? सरकार ये बता रही है गैर कायदेसर है तो फिर इनको यहाँ बसने क्यों दिया? एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात कि जो यहाँ पहले से रह रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। डिमोलेशन अब आप प्रक्रिया पूरे इंडिया में चल रही है ये मानते हैं, लेकिन गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया और डिमोलेशन कर रहे, ये गलत बात हो रही है। दूसरी बात कि इनको अगर वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए तो कुछ राहत करनी चाहिए और फॉर्म में जो पहला मतलब इन्होंने क्या बोलते पहला हफ्ता मांगा है इन्होंने 30,000 का, जो ये पब्लिक ये डर के पब्लिक फॉर्म भरने आने के लिए बहुत डर रही है। दूसरी बात कि 7,550 का ड्राफ्ट जो बना के देने की बात है तो वो भी पब्लिक परेशान इसलिए है कि अभी अचानक डिमोलेशन किया उन्होंने, जहाँ तहाँ मकान लिए, डिपॉजिट दी उन्होंने, तो उनकी डिपॉजिट के लिए इन्होंने पता नहीं किस किस्म की रीत से भरे हैं इन्होंने पैसे, और ये जो आवास योजना के फॉर्म स्थापित किए और अभी इनको 7,550 का डिमांड ड्राफ्ट ऑलरेडी मांग रहे फॉर्म के साथ, तो पब्लिक थोड़ी डरी हुई है। यहाँ हमारे कॉरपोरेटर शहजाद खान भाई ने यहाँ बहुत अच्छी सहूलियत की हुई है। पूरे 11 दिन इनको यहाँ पे फॉर्म फ्री में भर के देने की सहूलियत की हुई है। यहाँ हर तरीके का इन्होंने इंतज़ाम किया है, इनकी बहुत मेहरबानी। लेकिन यहाँ पब्लिक इसलिए वजह से डरी हुई है, एक तो अचानक डिमोलेशन होने वाला है, अचानक इनको डिपॉजिट देके और जगह जा रहे हैं। पब्लिक जहाँ था वहाँ पुल के नीचे दरगाहों में, मंदिरों, मस्जिदों में कहाँ पड़ी है। इनका इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया, ये बहुत बुरी बात है। खैर मेरी सरकार से ये अपील है कि इनको डिमोलेशन क्यों करो। इन्होंने अपनी इच्छा से सब डिमोलेशन का विरोध किए बगैर उन्होंने अपना मकान छोड़ने तैयार हुए। जो उनका लगा हुआ था मकानों में अपनी रीत से इन्होंने निकाला है, पूरा सहयोग दिया है सरकार को। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। जो ऑलरेडी डिमांड ड्राफ्ट मांग रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि उन्होंने डिपॉजिट पता नहीं कहाँ से दिया है, कैसे भरा है, किसी को मकान मिले हैं, किसी को नहीं मिले। अभी डिपॉजिट भी जो मकान किराए पे मिले मुँह महंगा ले रहे हैं, किराया मुँह महंगा ले रहे हैं।
गरीबों पे बस ये सहूलियत नहीं है। अचानक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बरसात से बादल टूटता है, इंसान बे जाता है, वो चलेगा, लेकिन ये तो जीते जी मार रहा है। शहजाद खान डिमोलिशन पठान के द्वारा जो अभी पैसा भरने का आ रहा है उसमें भी कमी करने का शहजाद खान पठान और शैलेश परमार कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये इनकी अथाक प्रयत्न रहा है गरीबों के हक में, हमेशा इन्होंने आगे बढ़े हैं, हमेशा इनकी यही तारीफ रही है। हर गरीब जानता है कि इनकी सहूलियत, इनकी मदद के लिए आ चुके हैं। उन्होंने बताया भी है कि हम अगर इसके लिए जाना पड़ा तो सुप्रीम तक जाएंगे, लेकिन बात यह है कि सरकार को जरा सोच समझ के ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है जरा इसमें कुछ राहत दी जाए। सरकार को इनको सबको वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये डिमांड ड्राफ्ट का सब समझ में आता है, लेकिन अचानक डिमोलिशन के बाद ये जो डिपॉजिट बनने का है, मुँह मांगा भाड़ा देने का है, लोग ब्रिज पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ तहाँ रोड पे पड़े हुए हैं। मलिक शफी भाई है। मैं पिछले 1990 से यहाँ चंडोला विस्तार में रह रहा हूँ। मेरे 2 बच्चों का जन्म भी यहीं हुआ है और जब से मैं रहना आया हूँ तब से 2005 से मैंने खुद लाइट बिल लेके रखा है। कच्चा छपरा था, फिर भी लाइट नहीं मिल रही थी। एक दीवार खड़ी करके मैंने वहाँ पे लाइट मीटर बिल लिया मैंने, और मैंने मीटर बिल और लोगों को भी दिलवाए। और अभी जो सरकार यहाँ पे मांग रही है कि 2010 के पहले के 2 पुरावे चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4-4 पुरावे रखने के बावजूद भी कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। मुझे वो कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या आप 2 पुरावे मांग रहे हो और 4 पुरावे रख रहा है, उसके बाद बोलते तुम्हारा लाइट का स्टेटमेंट लाओ। अब लाइट का स्टेटमेंट कहाँ से लेने जाएगा वो? लाइट का स्टेटमेंट लेने जा रहा है तो वहाँ 2 दिन 4 दिन के धक्के लग रहे हैं। जब उसको लाइट बिल उसका है, जब बोल रहा है कि मेरा लाइट बिल 2007 से के 2008 से है, बोले नहीं गवर्नमेंट पावर से उसका स्टेटमेंट लेके आओ। ये नाइंसाफी है सर। जी, शहजाद भाई और शैलेश भाई परमार दोनों बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, जो गरीबों के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। वो ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं। वो गरीबों की हेल्प के लिए आगे पीछे लगे पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से ही आज ये जो चंडोला के वासी है, क्या उनको मकान भी जो मिल रहे हैं, सरकार जो दे रही है, उन्होंने लड़ के सरकार से मांगनी करके इन लोगों के डॉक्यूमेंट सरकार के आगे रजू करके मांग की, तब सरकार ने वो फॉर्म बाहर पाड़े हैं। और फॉर्म जो बाहर पाड़े हैं उसमें जो कन्फ्यूजन है वो पब्लिक का दूर होना चाहिए। जैसे कि अब आप दाखला मांग रहे हो साल का 3 लाख का बराबर, और हफ्ता रख रहे हो 30 हज़ार का महीना। 10 हफ्ते में तुमको 3 लाख पूरे करने हैं बराबर। अब 30,000 महीना मंथली गिनो तो साल के 3,60,000 रुपये होते हैं, और आपका दाखला मांग रही है सरकार 3 लाख के अंदर अंदर। क्या तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। परवीन नाम मेरा। कहाँ पे मकान है आपका? सालम चंडोले में। डिमोलिशन वगैरह होगा तो क्या फॉर्म बनने आए हो मकान के? फॉर्म बनने आए मकान के, उम्मीद से आए कि फॉर्म भर जाए, मिल जाए। अब उसमें भी नहीं मिले तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो कोशिश पूरी है कि हम पैसे जो भर रहे हैं उस पर मतलब हमारे को जैसे फॉर्म फेल होते हो तो पैसे भी मिल जाए वापस, नहीं तो ऐसा हो कि फॉर्म भरने के बाद पैसे भी ना मिले। आपके नेता शहजाद खान और शैलेश परमार ने जो आपका जो हफ्ता है वो हफ्ता कम कराने के लिए सिफारिश की, इसके बारे में आप क्या कहोगे? अच्छी बात है, उनने बोला है तो हम उससे और क्या बोलेंगे। प्रशासन से सरकार से क्या मांगे थी? मांग यही है कि जो बेघर होगा उनको घर दे दो, या घर नहीं दे सकते हो तो इतनी डिपॉजिट दे दो उनको कि वो अपने घर रह सके। हफ्ता तो भर लेंगे पर डिपॉजिट कहाँ से लाएंगे? लेने जाओ, सालम के नाम से कोई मकान भी नहीं देता है, और डिपॉजिट 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा मांग रहे, कहाँ से लाने का? फॉर्म भर दिया आप? अब भरने आए हम। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए? आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, लाइसेंस और राशन कार्ड। कितने सालों से? मैं तो 30 साल अंदाज कितने सालों से रहते हैं? मैं तो मेरी तो सास और ससुराल मायका सब उधर, ये 40 साल होगा हम लोगों को रहते 40 साल हो गए। हाँ, आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या है वहाँ के? सब है, जो मांगेंगे वो सब है। वो 10 साल पुराना बोलते 2010 का चाहिए, 2010 का भी है, उसके बाद भी वो बोल दे कुछ नुक्स निकाल के मकान नहीं मिलेंगे तो हम क्या करें उसमें? 2010 का है, 2008 का है, जब से मतलब वो चालू है अपने काला फोटो, जबकि सब प्रूफ है सबके पास है, और सब हम लेके भी आए, फॉर्म भी भरवा दिया।